Hello viewers, I'm here Santosh Parwani and today here we are going to explain about the hybridization and its types. Hybridization क्या होती है और उनके कौन कौन से types होते हैं. Hybridization is basically the linear combination or fusion of atomic orbitals to produce the hybrid orbital. तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज हो जाएं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन कर दें, तो उसका नाम देंगे हम हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज हम एक सिंपल सा टॉपिक बेसिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो बात चल रही थी कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग. तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स हैं क्या? एटम, हर बच्चे बच्चे को पता होता है कि एटम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट. सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑर्बिट होता है. तो वो जो ऑर्बिट है दैट इज अगेन कंसिस्ट ऑफ सब ऑर्बिट and suborbits again oriented to produce the orbitals. So we have four suborbits S, P, D, F. S suborbit have one orbital, P suborbit have the three degenerated orbitals Px, Py, Pz. D have the five degenerated orbital Dxy, Dyz, Dzx, dx square, y square and dz square. Then we have F, and F have the 7 degenerated orbitals. So here I discuss that one is the S have the just no orientation because of their spherical shape, and then we have P, and P have the three different orientations. So we suppose that they are the three degenerated orbitals of the P, and we are very familiar that each degenerated orbital maximum can contain the 2 electron, and we know that P have the 6 electron here. So 2 each contain 2 electron, so 3 contain 6 electron. Like same situation D consists of the 5 degenerated orbital, and D have the 10 electrons because of each 2. So main thing is that overlapping होती है, hybridization होती है, hybrid orbital बनता है, sigma bond बनता है, bond formation आती है. So formation of sigma and pi bond. Very first formation of sigma bond. सिग्मा बॉन्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं कि जब भी ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड. वन इज SS sigma bond, another is SP sigma bond. Here look at the screen, that is SS2 s orbital overlapped. Another is the sp sigma bond, in which one s orbital and another is p orbital overlapped. Then we have pp sigma bond, means 2 p orbitals overlap together to produce the pp sigma bond. Pi bond only produced by the p among s and p. S cannot produce the pi bond because s has a tendency to linear overlap. S कहीं भी किसी भी तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग करता है. सो पैरेलल ओवरलैपिंग जब S के अंदर है ही नहीं तो S पाई बॉन्ड बना नहीं सकता. इसलिए P जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग भी करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करता है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है. तो लुक ओवर हियर दैट P ऑर्बिटल ओवरलैप्ड विद another p orbital parallelly and produce the pi bond. So next we have that when sigma bond formation
SS orbital overlapped, SP orbital overlapped, PP orbital overlapped, then what types of hybridizations are there? There are three types of hybridization. Number one is sp3 hybridization, in which one s orbital and three p orbitals overlap together produce sp3 hybridization, in which 25% s characters and 75% p characters are there. Simply we can say that 1/4 of s and 3/4 of p characters. After that, we have another type, that is sp2 hybridization, in which one s and two p orbitals overlapped. And then we have sp1 hybridization, where one s and one p orbitals 50-50 characters होते हैं, 50% s character and 50% p characters are there. So simply sp3 hybridization, again same definition is there. One s orbital, three p orbitals overlap together. sp2 hybridization, in which one s orbital and two p orbitals overlap together. Then we have sp1 hybridization, in which one s orbital and one p orbital overlap together. याद रहे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होती है उसके अंदर 109 डिग्री की एंगल होती है एंड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 120 डिग्री की एंगल होती है, प्लेनर ट्राइगोनल शेप्स आती हैं, और sp1 हाइब्रिडेशन जहाँ भी आएगी तो उसके अंदर क्या होता है कि 180 डिग्री की एंगल पाई जाती है और लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर हाइब्रिडाइजेशन मीथेन की पढ़ना चाहें तो सिंपल सी बात है कि मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपलेस्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। मतलब कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड होता है। तो हमें पता है कि कार्बन ग्रुप नंबर 4 से ताल्लुक़ रखता है, और कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हैं, तो मज़ीद कितने चाहिए? वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इट मीन कार्बन still need more 4 electrons to complete their octet. It means carbon share their 4 electron with the 4 different hydrogen to produce the 4 covalent bond. It mean के electronic configuration की अगर हम बात करते हैं, so electron configuration of carbon is, electron configuration कैसे निकालेंगे? सबसे important thing कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इट मीन कार्बन कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिटल 1s2, सेकेंड ऑर्बिटल 2s2, थर्ड ऑर्बिटल 2p। सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हमने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन s को, देन वी हैव सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 4 हैं, और वी हैव 4 सब ऑर्बिट्स 2s, 2px, 2py, 2pz। सो 4 इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज करेंगे, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल बच गए। इसका मतलब कार्बन अब कितनी बॉन्डिंग करेगा? 4 बॉन्डिंग करेगा। कार्बन कितनी ओवरलैपिंग करेगा? 4 ओवरलैपिंग करेगा। एक s ओवरलैप करेगा और 3 p ओवरलैप करते हैं। जैसे कार्बन के 2s ने हाइड्रोजन के 2s के साथ ओवरलैप कर दी, कार्बन के px ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली, कार्बन के py ने हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग कर ली, कार्बन के pz ने भी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग कर ली। याद रहे कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑर्बिटल थे कार्बन के पास, एक s और 3 p के, px, py, pz, और 4 के 4 ओवरलैप करते हैं। s orbital of the hydrogen different 4 s orbital of the 4 hydrogen atom to produce the sp3 hybridization.
यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई, sp3 आ गई। एंड देन बॉन्ड एंगल कौन सी आ गई, 109। अभी अभी बताया कि जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होगी तो बॉन्ड एंगल क्या आएगी, 109 आएगी। स्ट्रक्चर क्या आएगा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग जब भी होती है तो वो या एस एस होगी या एस पी होगी या पी पी होगी। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, देखिए एक एस एस ओवरलैपिंग हुई है और 3 एस पी ओवरलैपिंग हुई है। मतलब ये कि इन चारों ओवरलैपिंग के अंदर एस यूटिलाइज हुआ है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। सो यहाँ पे टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन आती है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक 2s हाइड्रोजन के s के साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2px 2py 2pz 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन आती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन की बात करते हैं। कार्बन के पास चार अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक कार्बन के s px py pz। तो इन 4 में से 3 जो हैं वो तो 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ऊपर देखेंगे कि एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर लिया। देन अगेन वी हैव नेक्स्ट कार्बन जो है उसके पास भी 3, एक तो S था जो कार्बन के S के साथ मिला, पीछे कितने बचे, 3 बचे, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि जितनी भी ओवरलैपिंग हुई है लीनियर ओवरलैपिंग हुई है। जहाँ लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जितने भी बॉन्ड बने ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कौन सी आएगी कि हर कार्बन ने एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूटिलाइज की हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड अगेन अगर इनकी बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बॉन्ड एंगल भी 109.28 है, स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ईच कार्बन अपने 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर हमें पता है कि एक ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सामने स्क्रीन पे आ रही है, देख सकते हैं कि 1s2 2s2 है एंड देन px1 py1 pz1। इसका मतलब इन अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर बचेगा और 3 जो हैं वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आएंगे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग भी कितनी होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग भी जो आएगी वो भी कितनी आएगी, एक लॉन पेयर और 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक 2s लॉन पेयर बना हुआ है और 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीनियरली ओवरलैप हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन आएंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो पैरामीटर मिलेगा। बॉन्ड एंगल जो होगी वो रिड्यूस हो गई। बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हुई, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स रिपलियन की वजह से। पता होना चाहिए कि रिपलियन ऑफ लॉन पेयर इज ग्रेटर देन रिपलियन ऑफ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर अगेन बॉन्ड एंगल रिड्यूस ड्यू टू द लॉन पेयर रिपलियन। इन अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन 4 है, पैरामीटर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 107 आ गई। तो यहाँ देखें कि सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से बने हैं और लॉन पेयर्स कहाँ मौजूद है। अगेन अगर हाइब्रिडाइजेशन हम वाटर की देखते हैं तो वाटर के पास 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 लोन पेयर्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि वैलेंस ऑर्बिटल के वैलेंस शेल के अंदर जो है 2 ऑर्बिटल पेयर्ड आते हैं और 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड आते हैं। देखिए मैंने 2 पेयर्ड ऑर्बिटल पहले से दे दिए। अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा py और दूसरा बचा pz।
तो दोनों ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ लीनियर ओवरलैपिंग की और क्या बना दिया। अगेन यहाँ देखें, जो लॉन पेयर बनते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होते हैं। दोनों लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हैं और दोनों बॉन्ड पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हैं। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन गए हमारे पास, 4। बॉन्ड एंगल यहाँ देखो अमोनिया से भी डिक्रीज करके नीचे आ गए। अमोनिया के अंदर 107 की होती है, यहाँ पर कितनी होती है, 104 की। सो बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 104 ड्यू टू लॉन पेयर रिपलियंस। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास वाटर की कुल प्रॉपर्टीज़ की कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, स्ट्रक्चर बैंड होता है, बॉन्ड एंगल 104 आती है। बॉन्ड एंगल 104 रिड्यूस क्यों आती है, ड्यू टू लॉन पेयर्स की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम इथीन की हाइब्रिडाइजेशन को देखना चाहें तो थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए। अगेन वी हैव कार्बन एटम। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होते हैं और वो 4 ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें से एक ऑर्बिटल हमारे पास क्या करता है, s है, 3 क्या है हमारे पास, px, py, pz है। तो एक s दूसरे कार्बन के s के साथ ओवरलैप कर लिया, ये वाला बॉन्डिंग बन गया। एंड देन दो इथीन का जो फॉर्मूला होता है C2H2 है। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के साथ चले गए, एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ चला गया। अब दोनों कार्बन के पास बचता क्या है, pz, यानी कि एक ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है और जो ऑर्बिटल बचा हुआ है वो दोनों कार्बन के पास है। एक कार्बन के पास भी pz है, दूसरे के पास भी pz है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी 2 एटम के दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन होती है तो ट्वाइस लीनियर हो नहीं सकती। फिर क्या होगा, फिर उन दोनों में पैरेलल ओवरलैपिंग होगी जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पर जो अगेन एक्सप्लेनेशन करने की थोड़ी सी नीड मुझे लग रही है कि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड, एक s, एक px, py, pz। s एक कार्बन का दूसरे कार्बन के s के साथ ओवरलैप होता है, फिर एक कार्बन के px और py 2 हाइड्रोजन के साथ, दूसरे कार्बन के px और py 2 हाइड्रोजन के साथ, बचा क्या दोनों के पास, pz बच गया। अब pz आपस में क्या करते हैं, देख रहे हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग की और क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन की बात करें, उससे पहले इथीन के अंदर आप देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। जब भी sp2 हाइब्रिडेशन आती है तो 120 डिग्री की एंगल आती है, प्लेनर ट्राइगोनल शेप्स आती है। सो इथाइन की बात की तो हर कार्बन के पास तो वही 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ। अब कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड बचे, 2 बचे। कैसे, टोटल 4 थे, एक s के साथ गया दूसरे कार्बन के और दूसरा s के साथ गया हाइड्रोजन के, तो 2 ऑर्बिटल चले गए, तो पीछे क्या बचा, px और py बचा, सॉरी py और pz बचा। तो py और pz मतलब दोनों कार्बन के पास बचे। अब एक कार्बन का और दूसरे कार्बन के दरमियान वंस लीनियर तो हो गई, बचे कितने, 2 ऑर्बिटल हैं जो कभी भी आपस में ओवरलैप, लीनियरली ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि उन 2 कार्बन एटम के दरमियान ऑलरेडी वंस लीनियर कॉम्बिनेशन हो चुकी है। तो 2 क्या होगा ये कि जो लास्ट में 2 ऑर्बिटल बचे हैं वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, pz से, py से, और 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे।
हमें पता है कि इथाइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 2 sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp1 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या है? sp1 है। जब भी sp1 हाइब्रिडेशन होती है एंगल क्या बनेगी? 180 डिग्री की, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लीनियर। सो गाइस, यहाँ पर hybridization of ethine, there are two sp1 hybrid orbital formations are there. sp1 hybridization, bond angle in ethine is 180 degree and shape is linear because each carbon consists of 4 orbitals in which 2 orbitals linearly overlapped and 2 orbitals parallel overlap. That's why here only one s and one p orbital utilized for the bond formation. That's why it's called the sp1 hybridization. Thank you so much.